Hello everyone, welcome in Power Plant Engineering as a elective of 5th semester Mechanical Engineering. Unit number 6, Economic Analysis of Power Plants. Topic 2, Economic Analysis of Power Plants. Lecture number 24, prepared by Mrs. Amruta Mundle, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic, Now. Department of Mechanical Engineering has a following vision and mission. You just read the vision and mission of this slide of our department. Content of today's lecture as cost analysis and its types, methods to reduce power generation cost, and numericals on economic analysis calculation of power plants. Learning outcomes. After completion of this video lecture, you are able to estimate cost of electricity in the given situation using simple numerical problems. Calculate performance parameters for the given power plant using simple numerical problems. Program outcome will be mapped by this video lecture as PO1 to PO7 and PSO1 to PSO3. ओवरव्यू ऑफ लास्ट सेशन. तो लास्ट सेशन में हमने देखा है प्रिडिक्शन ऑफ लोड एंड इट्स नेसेसिटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग चॉइस ऑफ पावर प्लांट्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड डिफरेंट टर्म्स यूज इन इकोनॉमिक एनालिसिस ऑफ पावर प्लांट्स. तो देखते हैं कॉस्ट एनालिसिस क्या होता है. द अल्टीमेट एम ऑफ पावर प्लांट डिजाइन इज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी एट मिनिमम कॉस्ट एंड हाई एफिशिएंसी. तो हमारे पावर प्लांट का एक अल्टीमेट एम होता है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा इन मिनिमम कॉस्ट एंड हायर एफिशिएंसी. तो कोई भी आप चीज़ खरीदने जाओ तो उसका आउटपुट हमें मैक्सिमम मिलना चाहिए और उसकी कॉस्ट भी कम होनी चाहिए, ऐसा हम एम देख रखते हैं. तो उसी तरह से हम पावर प्लांट के बारे में भी ये एम रख सकते हैं. The generation cost per unit kilowatt hour depends upon the cost of creating design, erection, commissioning and operation of power plant. तो पावर प्लांट जनरेशन का जो कॉस्ट है पावर जनरेशन का वो डिपेंड करता है वेरियस फैक्टर्स. तो कॉस्ट एनालिसिस में फर्स्ट टाइप होता है फिक्स कॉस्ट, जो कॉस्ट उसके इन्वेंट्री के लिए या फिर वो बनाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए जो कॉस्ट हमें फिक्स लगेगा, दैट इज कॉल्ड एज ए फिक्स कॉस्ट. फिक्स कॉस्ट इज यूजुअली इनक्योर्ड ओनली वंस ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ प्लांट. तो फिक्स कॉस्ट इसमें आएगा आपके मशीनरीज कॉस्ट, पावर प्लांट सेटअप कॉस्ट, इस तरह से जो भी चीज़ें हमें एक टाइम लाइफ टाइम के लिए यूज होगी दैट इज कॉल्ड एज ए फिक्स कॉस्ट. फिक्स कॉस्ट हैज फॉलोइंग कंपोनेंट्स लाइक capital cost of power plant, purchase of land development, purchase of machinery and equipments and their installation, engineering and architectural fee of that project. Capital cost of primary distribution system, cost of construction of transmission line, cost of construction of substations, its building and equipments. तो ये सारे जो कॉस्ट रहेंगे वो आएंगे कैपिटल कॉस्ट ऑफ पावर प्लांट जो हमारे फिक्स्ड है. देन आएगा इंटरेस्ट, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस, ये भी हमारा फिक्स कॉस्ट के अंदर आता है. तो उस पावर प्लांट को बनाने के लिए जो हमने फाइनेंस किया उसका इंटरेस्ट हमारा फिक्स में आएगा, उसके ऊपर आने वाले टैक्सेस और उसका इंश्योरेंस जो रहेगा ये आएंगे हमारे फिक्स कॉस्ट के अंदर. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कॉस्ट, many times capital cost or part of capital cost is usually borrowed and the borrower has to pay the interest. This payment is called as the interest on capital cost. Taxes, the management has to pay various taxes to town and state authorities such as property tax, land tax or etc. And last is the insurance. The heavy investment made has to be protected from the risks of fire, explosion, storm, earthquake, flood, etc. That is called as a
insurance cost. That all are included in fixed cost. Fixed cost include capital cost, interest, taxes and insurance. Then the next is a depreciation. What is depreciation? Every equipment depreciates due to corrosion, erosion, wear and tear with use. Therefore, when the equipment failure occurs and it stops working, then this old equipment has to be replaced with new equipment. तो क्या है कि आप जो इक्विपमेंट पावर प्लांट के अंदर यूटिलाइज करेंगे उसमें कोरोजन आएगा, वियर टीयर आएगा बिकॉज ऑफ यूज़। तो हमें क्या करना है, उसको उसकी जब वो फेल्यूर आता है तो उसको हमें नया रिप्लेसमेंट देना पड़ता। ये जो कॉस्ट आएगा इस कॉस्ट को हम बोलेंगे डिप्रेशिएशन कॉस्ट, और ये भी हमारा फिक्स कॉस्ट के अंदर है। कॉमन मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग डिप्रेशिएशन अमाउंट आर परसेंटेज मेथड, यूनिट मेथड, straight line method for which A equal to P minus S upon N, sinking fund method for which A equal to R upon 1 plus R is to power N minus 1 into P minus S। तो P क्या है हमारा initial investment, S is a salvage value at the end of plant life, N is a life of plant in years, R is the annual rate of interest on the invested capital, A is a depreciation amount set aside per year. Last is a managerial cost. It includes salaries and wages of the people working in the plant during construction stages. तो construction stages में जो employees हमारे power plant के अंदर काम करेंगे, ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। तो हमारे पावर प्लांट को चलाने के लिए जो कॉस्ट लगेगी या फिर जो कॉस्ट वेरी हो सकती है, दैट इज कॉल्ड एज ए वेरिएबल कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट मीन्स द एक्सपेंडिचर्स इंक्योर्ड फॉर ऑपरेटिंग द पावर प्लांट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो पावर प्लांट सेटअप हो गया और हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन स्टार्ट हुआ, उस टाइम पे आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा ऑपरेटिंग कॉस्ट पे फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसको हम बोलेंगे ऑपरेटिंग कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट इंक्लूड कॉस्ट ऑफ फ्यूल एक्सेप्ट द केस ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में वर्किंग फ्लूइड हम वाटर का यूज़ करते हैं और वाटर फ्रीली अवेलेबल होता है, तो कॉस्ट ऑफ फ्यूल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में ज़ीरो हो जाए। Cost of salaries and wages of the employees, cost of maintenance and repair of all the equipments used in power plant, operating taxes. Now we discuss about unit energy cost। तो एक यूनिट जो हमारा एनर्जी प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, उसकी कॉस्ट कैसे फाइंड करना है ये हम देखते हैं। यूनिट एनर्जी कॉस्ट इज कैलकुलेटेड बाय कंसिडरिंग एनुअल फिक्स चार्जेस एंड एनुअल रनिंग चार्जेस। तो फिक्स चार्जेस एंड एनुअल रनिंग चार्जेस, इन दोनों का अगर हम सम करेंगे तो हमें मिलेगी यूनिट एनर्जी कॉस्ट। तो यूनिट एनर्जी कॉस्ट इक्वल टू एनुअल फिक्स चार्जेस पर किलोवाट रेटिंग ऑफ प्लांट प्लस एनुअल रनिंग चार्जेस टू द पावर जनरेटेड इन किलोवाट आवर्स। इसको हम यूनिट एनर्जी कॉस्ट को इस तरह से भी कर सकते हैं, in the rupees of annual fixed charges, that is A upon kilowatt, plus annual running charges is a B rupees upon kilowatt hours। तो आइए देखते हैं मेथड्स टू रिड्यूस पावर जनरेशन कॉस्ट। अभी हमें जो देखा कि किस तरह से हम जनरेटिंग कॉस्ट पावर प्लांट की, पावर जनरेशन की, इलेक्ट्रिसिटी की कैलकुलेट कर सकते हैं। अब उसे हमें क्या करना है, मिनिमाइज करना है कॉस्ट को बाय यूजिंग ए प्लांट ऑफ सिंपल डिज़ाइन विच डज नॉट नीड हाईली स्किल्ड पर्सनल और लेबर्स। तो अगर अपने पावर प्लांट के डिज़ाइन पे सिंप्लिसिटी रखते हैं तो हमें स्किल्ड पर्सन और लेबर्स की ऑपरेटिंग के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती, जिससे हमारी कॉस्ट पावर जनरेशन की कम हो सकती है।
नेक्स्ट है बाय सिलेक्टिंग इक्विपमेंट ऑफ प्रॉपर कैपेसिटी। तो कैपेसिटी के हिसाब से हम प्रॉपरली इक्विपमेंट को अरेंज करके जनरेशन कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हैं। अनदर फैक्टर इज है बाय सिलेक्टिंग इक्विपमेंट हैविंग लॉन्गर लाइफ एंड रिक्वायरिंग मिनिमम मेंटेनेंस कॉस्ट ओवर द होल लाइफ। तो इक्विपमेंट की लाइफ लॉन्गर होनी चाहिए और उसका मेंटेनेंस भी मिनिमम होना चाहिए, जिसकी वजह से पावर जनरेशन कॉस्ट रिड्यूस हो सकता है। बाय कैरिंग आउट प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट्स टू अवॉइड प्लांट ब्रेकडाउन, बाय रनिंग द पावर प्लांट stations at high load factors, by supervising the plant operation carefully, this ensures few breakdowns and extended plant life। तो जो ये सारी चीज़ें करके हमें पावर प्लांट की लाइफ को बढ़ाना है, उसके साथ उसका मेंटेनेंस भी कम करना है, ब्रेकडाउन पे ध्यान देना है और हमारे इक्विपमेंट को फुल यूटिलाइज करना है अकॉर्डिंग टू हिज कैपेसिटी। तो अल्टीमेटली हमारा रिडक्शन ऑफ पावर जनरेशन हो जाएगा। दैट्स ऑल अबाउट द मेथड्स टू रिड्यूस पावर जनरेशन कॉस्ट इन पावर। तो अभी हम एक न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। द मैक्सिमम डिमांड ऑफ जनरेटिंग स्टेशन इज 18 मेगावाट। एक पावर प्लांट है जिसका मैक्सिमम डिमांड है 18 मेगावाट पावर जनरेशन। Calculate the cost per kilowatt generated from the data given below। तो हमें कैलकुलेट करना है कॉस्ट पर किलोवाट आवर्स जनरेटेड फ्रॉम दिस पावर प्लांट। तो हमारा कुछ डाटा हमें गिवन दिया है, जैसे कैपिटल कॉस्ट इन रुपीज 180 इंटू 10 टू द पावर 6, एनुअल कॉस्ट ऑफ फ्यूल एंड लुब्रिकेटिंग ऑयल इक्वल टू रुपीज 60 इंटू 10 टू द पावर 6, taxes, wages and salaries given as a rupees 10 into 10 to the power 6. Rate of interest is 12%. Depreciation is 8%. Annual load factor is 60%. All these are the given data in this problem. तो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन में क्या गिवन है। तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम गिवन डाटा। तो गिवन डाटा में कैपेसिटी ऑफ पावर प्लांट दिया है P। P इज ए 180 इंटू 10 टू द पावर 6, दैट इज ए कैपिटल कॉस्ट, इज ए रिप्रेजेंट एज ए P। Annual cost of fuel and lubricating oil is also given in rupees 60 into 10 to the power 6. Next is a taxes, wages and salaries is given in the rupees of 10 into 10 to the power 6. Rate of interest is small r equal to 12% and depreciation is a 8%. Annual load factor is a 60% equal to 0.6. Maximum demand is 18 megawatt and is equal to 18 into 10 to the power 3 kilowatt. This megawatt is converted into kilowatt for the calculation purpose. So this data is given from this question. First step is load factor। तो हमारा load factor का फॉर्मूला है एवरेज लोड टू मैक्सिमम डिमांड। तो एवरेज लोड इक्वल टू हो जाएगा हमारा, एवरेज लोड हमें नहीं दिया है, लोड फैक्टर दिया है और मैक्सिमम डिमांड दिया है। लोड फैक्टर है हमारा 0.6 एंड मैक्सिमम डिमांड है 18 इंटू 10 टू द पावर 3। इस कैलकुलेशन के हिसाब से हमें एवरेज लोड मिलेगा जिसकी वैल्यू आएगी बाय पुटिंग द वैल्यूज इन कैलकुलेटर 10.8 इंटू 10 टू द पावर 3 किलोवाट। Then the number of units generated per annum, that is in 1 year। तो एक साल में कितने यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स जनरेट होंगे इलेक्ट्रिसिटी के, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो इज इक्वल टू जो हमारा एवरेज लोड है उसको हम कैलकुलेट मल्टीप्लाई करेंगे एनुअल डेज, दैट इज 365 डेज इंटू 24 आवर्स पर डे। तो 10.8 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 8760 आवर्स हमें यूज़ करना है। ये आवर्स कहाँ से आए, 365 इंटू 24 आवर्स, क्योंकि साल में 365 डेज होते हैं और 24 आवर्स
ये एक डे में आवर्स होते हैं। इस हिसाब से हमारे टोटल आवर्स हो गए 1 ईयर के 8760 आवर्स। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे एवरेज लोड के साथ, जिसकी वैल्यू है 10.8 इंटू 10 टू द पावर 3 किलोवाट। तो हमारा नंबर ऑफ यूनिट जनरेटेड पर एनम मिलेगा 94.608 इंटू 10 टू द पावर 6 किलोवाट एंड दिस आवर्स। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे चार्जेस पेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कॉस्ट पर एनम, और ये हमें गिवन था 12% ऑफ कैपिटल कॉस्ट। तो ये हमारा इन्वेस्ट था 12%, जिसको हमने ऑफ कैपिटल कॉस्ट किया, तो ये आएगा 12% को हम लिखते हैं 12/100, और हमारा कैपिटल कॉस्ट थी 180 इंटू 10 टू द पावर 6। दिस वैल्यू इज गिवन इन क्वेश्चन। So the rupees, this calculation of paid interest paid is a rupees 21.6 into 10 to the power 6 charges paid for interest on capital cost per annum। इसके अकॉर्डिंग हमें नेक्स्ट कैलकुलेट करना है चार्जेस पेड फॉर डिप्रेशिएशन ऑन कैपिटल कॉस्ट पर एनम, और डिप्रेशिएशन की जो वैल्यू थी वो थी हमारी 8%। किसकी 8% लेंगे हम? कैपिटल कॉस्ट का। और कैपिटल कॉस्ट कितनी है हमारे पास? 180 इंटू 10 टू द पावर 6। तो 8% को हम लिखेंगे 8/100 इंटू 180 इंटू 10 टू द पावर 6। अगेन इसका हम कैल्सी में डाल के कैलकुलेशन करेंगे, तो ये आएगा हमारा रुपीज 14.4 इंटू 10 टू द पावर 6। नेक्स्ट थिंग हम कैलकुलेट करेंगे टोटल एनुअल चार्जेस पेड इज इक्वल टू एनुअल चार्जेस फॉर इंटरेस्ट प्लस डिप्रेशिएशन प्लस फ्यूल एंड ऑयल प्लस टैक्सेस वेजेस एंड सैलरी। ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमें गिवन में दिया था, जिसकी हमने चार्जेस पेड इन परसेंट फॉर्म को कन्वर्ट करके कैलकुलेट किया था। तो ये हमारा टोटल कॉस्ट आएगा सम ऑफ ऑल थिंग्स। तो ये सारी चीज़ें हमने कैलकुलेट की है। चार्जेस पेड ऑन इंटरेस्ट, चार्जेस पेड ऑन डिप्रेशिएशन, charges paid by fuel and oil, and charges paid for taxes, wages and salaries. So all this included sum of total annual charges paid is in rupees. So 21.6 into 10 to the power 6 plus 14.4 into 10 to the power 6 plus 16 into 10 to the power 6 plus 10 into 10 to the power 6, ये वैल्यूज हमने कैलकुलेट की है और इनको हमें सम करना है। तो बाय यूजिंग ऑफ कैलकुलेटर आपको इसकी वैल्यू मिलेगी टोटल एनुअल चार्जेस पेड की ₹62 इंटू 10 टू द पावर 6। नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है यूनिट कॉस्ट पर किलोवाट आवर्स इक्वल टू, इसका फॉर्मूला है टोटल एनुअल चार्जेस पर नंबर ऑफ यूनिट्स जनरेटेड पर एनम। तो हमने टोटल एनुअल चार्जेस तो कैलकुलेट की है, वो है हमारे ₹62 इंटू 10 टू द पावर 6। तो आपको यहाँ पे इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुटअप करना है, तो आपको यूनिट कॉस्ट पर किलोवाट आवर्स मिलेगा, जो कि तो हमारा है टोटल एनुअल चार्जेस है ₹62 इंटू 10 टू द पावर 6 एंड अपॉन में नंबर ऑफ यूनिट जनरेटेड पर एनम। ये हमने कैलकुलेट किया था 94.608 इंटू 10 टू द पावर 6 किलोवाट आवर्स। तो बाय पुटिंग दिस वैल्यूज इन कैलकुलेटर आपका आंसर आएगा इन रुपीज 0.655 पर किलोवाट आवर्स। ऊपर हमारे रुपीज़ है और नीचे रेशियो फॉर्म में किलोवाट आवर्स है। तो यूनिट कॉस्ट पर किलोवाट आवर्स के हिसाब से आएगा हमारा ₹0.655 पर किलोवाट आवर्स। तो हमें एक यूनिट किलोवाट आवर के लिए कॉस्ट लगेगी 0.655। Time is to discuss unit outcome achieved by this video lecture as estimate cost of electricity in the given situation using simple numerical problems. Also calculate performance parameters for the given power plant using simple numerical problem. Summary of today's lecture. तो आज हमने देखा cost analysis and its types, methods to reduce power generation cost, and numerical on this calculate estimate cost of electricity or different performance parameters of the given power plant. Program outcome achieved by this video lecture as PO1, PO5, PO6 and PO7 are mapped.
Now the time is to give some assignment, and that assignment is a assignment number 24. All of you note all the questions of this assignment and solve in your copy and upload in Genoveno site as a assignment number 24. Question 1. Explain cost analysis and its types. Explain methods to reduce power generation cost. Calculate the cost of power generation per kilowatt hours for a power station having the following data. As installation capacity of the plant is 200 megawatt, capital cost is a rupees 400 crore. Rate of interest and depreciation is at 12%. Annual cost, fuel, salaries and taxation is at rupees 5 crores. Load factor is at 50%. All this cost is already given in terms of capital cost in rupees of 5 crores and 400 crores. So you are not calculate this value in the cost by using previous problems, but everything is similar by given problem. तो ये प्रॉब्लम अगेन वैसा ही है जैसा हमने सॉल्व किया था. नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी टॉपिक पे एक और न्यूमेरिकल्स देखेंगे. तब तक के लिए थैंक यू. कीप ऑनलाइन.